Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start the next topic, transport of respiratory gases. In previous video, we have understood how the exchange of gases occurs in our body at pulmonary level and at the tissue level, and how this respiratory gases, that is oxygen and carbon dioxide, so how can it transport inside the body through lungs to tissue and tissue to lungs. So what is the mechanism behind this? So actually this is the a vast topic and very conceptual topic. Please watch the video carefully. So now let's start now the transport of oxygen. Firstly, we understand how the oxygen is transported in our body, and this oxygen comes in the blood in alveoli, from the alveoli. And this transport of oxygen basically carried out by two methods. First, as dissolved form in plasma, that means oxygen can dissolve in plasma as it is, and but this method is carried out in very least percentage, that is 1.3% oxygen is carried out through this method. And next, which is the most जो important process है, that is as oxyhemoglobin. We know very well that is the hemoglobin, which is a pigment which is found in RBC, in our blood. And we know it also that hemoglobin carries this oxygen in throughout the body. But what is the basic mechanism behind this, we have to understand. So now before the starting of this mechanism, we have to understand what is the hemoglobin. Hemoglobin, actually it is the pigment which is made up of two parts. First, the iron containing part, and second is the globin part, which is basically protein. The iron containing part has porphyrin ring. The porphyrin ring which is the carbon compound, and you will study in these type of compounds in chemistry, basically organic chemistry. And now you can understand that is one iron containing part has 4 pyrrole rings, and ईच पायरोल रिंग हैज़ वन फेरस मॉलिक्यूल, यानी कि एक तो टोटल एक हीमोग्लोबिन में 4 आयरन जो मॉलिक्यूल हो गए, 4 आयरन आयन हो गए. तो ईच फेरस बाइंड्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. तो दैट मीन्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ hemoglobin can carry only 4 molecules of oxygen. And this is the structure. You can suppose this is the hemoglobin, which is carry 4 ferrous molecule, and ferrous, you can say ferrous, and this ferrous bind to 4 molecules of oxygen. So we can say that 1 gram of hemoglobin carry 1.34 milliliter of oxygen. This is the data which is practically noted. And 100 milliliter of blood contains 15 gram of hemoglobin. It is the average value, and we know it varies in male and female, but we are taking this is the average value. So amount of oxygen transported by the 100 ml blood, तो क्या होगी, बिकॉज 1 ग्राम में कितनी आएगी, 1.34, तो 15 ग्राम में मल्टीप्लाई करके आ जाएगी. तो आप अप्रॉक्सीमेटली 20 ml जो है आपका ऑक्सीजन कैरिड आउट होता है बाय द 100 ml ब्लड. तो ये था डाटा. और अब हम समझेंगे तो व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म. मैकेनिज़्म ये है कि जो
ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जो है ये बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन से और इट फॉर्म्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन विच इज़ टेम्परेरी एंड शॉर्ट लिव्ड कॉम्प्लेक्स, जो कि बिल्कुल टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है और शॉर्ट लिव्ड है, जैसे यानी कि ये कॉम्प्लेक्स जो है फिर पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है फिर टूट जाता है, तो ऑक्सीजन जो है रिलीज़ हो जाती है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को बाइंड करने में दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर कि जो एल्वियोलर एयर है उसमें जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, तो उतना ही ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है बनने की जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा। और दूसरा जितना हाई होगा कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ब्लड के अंदर, तो ये भी प्रोमोट करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन को बनने में। ड्यू टू द ट्रांसपोर्टेशन बाय हीमोग्लोबिन, दिस इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कई बार 1-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि वाई द हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कैरीज द ऑक्सीजन इनसाइड द बॉडी एंड इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेटरी पिगमेंट. Now the transport of carbon dioxide, and which is the very typical and complex process than the transport of oxygen. So we have to understand very carefully. A transport of CO2 is carried out by two method, as it is same as in oxygen, that is by plasma or by the hemoglobin. So 100 ml blood can transport how much carbon dioxide? That is 3.7 milliliter of carbon dioxide. Basically carbon dioxide is transported by separately 3 methods which are interlinked together, and firstly as carbonic acid. इसका मतलब क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड, एंड दिस in this type the carbon dioxide is carried out or transported only in 7%. And second method is you can say second step, and bicarbonates of sodium and potassium, and through this method 70% of carbon dioxide is transported. And third one is as carb amino hemoglobin, and as carb amino hemoglobin carbon dioxide is transported as 23%. So now start the first method, that is as carbonic acid. As carbonic acid, so this process or this chemical reaction occurs inside the RBC. RBC, that means red blood cells. And in RBC carbon dioxide is converted into carbonic acid in the presence of an enzyme and zinc ions, and this carbonic acid comes out from the RBC into the plasma. Then what is the reaction? Chemical reaction. This is the chemical reaction which occurs inside the RBC. Carbon dioxide which is present in blood, and RBC convert this carbon dioxide with the help of water, and in the presence of enzyme that's name is carbonic anhydrase. And in this reaction carbon dioxide fuses or combine with oxygen in presence of enzyme carbonic anhydrase, and it converts into carbonic acid, and this chemical reaction occurs in the presence of a type of ion, that is zinc ion. And so zinc is very necessary for our body, and this reaction takes place in RBC, and when the carbonic acid is formed, this carbonic acid diffuses into the plasma through the from the RBC, and this carbonic acid comes to the plasma. Now the next method through which the carbon dioxide is transported by the blood. Second method is as bicarbonates of sodium and potassium,
and it is done as 70%. Suppose this is the RBC, the cell of, this is the red blood cell. Now we have understood that the formation of carbonic acid inside the RBC, and when the carbon dioxide from the tissue reaches to the RBC through the diffusion, it combines with water in presence of carbonic anhydrase and zinc ion, and it forms carbonic acid. Carbonic acid, when the low partial pressure at tissue level found, this carbonic acid dissociate into two ions, hydrogen ion and carbonate ion. Hydrogen carbonate ion, so hydrogen ion which is positively charged and the hydrogen carbonate ion which is negatively charged. These negatively charged hydrogen carbonate ion passes through, carried out through the RBC से कहाँ जाएंगे, प्लाज्मा में, and a special carrier protein is necessary for this reaction which is called bicarbonate chloride carrier protein. That means this जो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन है, ये कैरियर प्रोटीन इस हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन को कहाँ लेके आ जाएगी, आरबीसी से निकल करके प्लाज्मा में ले आएगी. अब क्या होगा, ये कार्बोनेट जो आयन है ये नेगेटिवली चार्ज है, तो बाहर प्लाज्मा में पहले से ही क्लोराइड आयन प्रेजेंट है जो कि नेगेटिव आयन है. तो अगर प्लाज्मा का जो बैलेंस है, केमिकल बैलेंस, वो चेंज ना हो जाए या आरबीसी का बैलेंस कोई गड़बड़ ना हो जाए, तो इससे क्या होता है, तो इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, तो जितने हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन आरबीसी से बाहर प्लाज्मा में आते हैं, उतने ही क्लोराइड आयन कहाँ चले जाएंगे, आरबीसी में चले जाएंगे. तो इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट. और इसको सबसे पहले हैमबर्गर ने देखा था, डिस्कवर किया था, नोटिस किया था, तो इसको हम हैमबर्गर शिफ्ट या हैमबर्गर इफ़ेक्ट भी बोलते हैं. तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, हैमबर्गर इफ़ेक्ट, और ज़्यादातर बच्चों का कंसेप्ट इसमें क्लियर नहीं होता. मैं इसको दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. जब जो कार्बोनिक एसिड है हमारी आरबीसी में बन जाएगा, और कब बनेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगी, आरबीसी में आएगी, और तब कब आएगी, जब टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा. दैट मीन्स जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कम हो जाएगा. तो उस वक्त क्या होगा, आरबीसी की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये डिसोशिएट हो जाएगा किस किस में, हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन में. हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज हैं और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन नेगेटिवली चार्ज हैं. ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू, जिसका नाम है बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन, इस प्रोटीन से बाइंड हो करके आरबीसी से निकल करके प्लाज्मा में आ जाएंगे. अब प्लाज्मा में जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लाज्मा में ऑलरेडी जो है क्लोराइड आयन प्रेजेंट है. तो अब क्या होगा, अब जितने नंबर कार्बोनेट आयन के प्लाज्मा में आए हैं, ठीक उतने ही इक्वल नंबर क्लोराइड आयन जो है आरबीसी में शिफ्ट हो जाएंगे. तो इस प्रोसेस को क्लोराइड शिफ्टिंग बोलते हैं या हैमबर्गर शिफ्टिंग बोलते हैं. ठीक है. अब इस हाइड्रोजन कार्बोनेट का होना क्या वाला है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लाज्मा में जो प्रेजेंट है सोडियम और पोटेशियम आयन विच इज़ पॉजिटिवली चार्ज, तो ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन इनसे रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेगा. अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जब ये रिएक्शन होनी ही थी तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बाहर क्यों आए, सोडियम पोटेशियम ही अंदर क्यों नहीं चले गए. इसका आंसर ये है कि जो आरबीसी की जो लेयर होती है या मेम्ब्रेन होती है, इसको डोमिनेंट
मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सोडियम और पोटेशियम आयन के लिए इम्परमेबल है। इम्परमेबल का मतलब सोडियम और पोटेशियम आयन इसको पार नहीं कर सकते, इसीलिए हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन को प्लाज्मा में आना पड़ता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, इस कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाइंड हो जाती है और ब्लड में चलती चली जाती है। तो ये था दूसरा मेथड जिसमें बाइकार्बोनेट के फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड आउट होएगी। अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड था दैट इज़ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है 23% जो है कैरिड आउट होती है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जैसे हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को बाइंड किया था और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया था, तो हीमोग्लोबिन में एक एमिनो ग्रुप होता है। एमिनो मतलब NH2, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या है, उसके मॉलिक्यूल के अंदर एक एमिनो ग्रुप होता है। वो एमिनो ग्रुप इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड कर लेता है और बाइंड करके हीमोग्लोबिन अब क्या बन जाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में जो है ये बॉडी में चलता है, ब्लड में चलता है। तो ये जो एक कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन है ये भी ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जैसे ही टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स है, और जैसे ही पार्शियल प्रेशर का चेंजेस होगा तो ये टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, हीमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में चली जाएगी और वो बाहर निकल जाएगी। तो ये था हमारा जो पूरा कंसेप्ट जिसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है गैसेस की। 2 रेस्पिरेटरी गैसेस हमने पढ़ी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके साथ साथ पॉल्यूशन की वजह से कह लो या ये कह लो जैसे इनकम्प्लीट कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल्स का, तो तब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। अगर कोई पर्सन ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में रहता है तो इस कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है ये हमारी इनहेल्ड एयर में चली जाती है और बॉडी में इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, और जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो जाता है, जो हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के जो टूवर्ड्स है वो बहुत ज़्यादा 200 टाइम्स एफिनिटी है, यानी कि वो लविंग है कार्बन डाइऑक्साइड को, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को वो दोनों रेस्पिरेटरी गैसेस की कंपैरिजन में 200 टाइम्स लव करता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है वो वेरी फास्ट है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी भी जुड़ता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। लेकिन जो प्रॉब्लम वाली बात वो ये है कि वो जो कॉम्प्लेक्स बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये एक परमानेंट कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमने पढ़ा ऑक्सी हीमोग्लोबिन या कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, ये दोनों ही क्या है, टेम्परेरी कॉम्प्लेक्स हैं, और जैसे ही इनका रिलीजिंग का मतलब पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करेगा, जो मैं अगले टॉपिक में आपको बताऊंगी कि कैसे ये रिलीज़ होंगे। तो ये रिलीज़ हो जाते हैं और हीमोग्लोबिन फ्री हो जाता है फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, ऑक्सीजन को कैरिड आउट करने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो कंपाउंड बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये परमानेंट कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन हमेशा के लिए बाइंड हो जाता है और हमारी बॉडी में चलता रहता है, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है और हम लोगों को क्या है, पॉइजनिंग हो जाती है, जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ये बहुत बेकार डिसीज़ है। तो ये था सब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस के बारे में, और नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।